Okay, so we have done with the risk and return. So now the topic which we are going to start today is portfolio management. Now what do we mean by portfolio management? इसको समझने से पहले we need to understand what is a portfolio. क्या होता है portfolio? It is simply a combination of securities. Combination of securities. Right? Combination of securities, combination of different securities. So basically, a portfolio is nothing but a combination of security which actually which constitutes an investor's total holding. Whatever securities, whatever stock, whatever investment he has done, so it is actually the total combination of those different securities is called as portfolio, which shows his total holding. Whatever securities, whatever stocks he is holding is actually the total combination of that is called the portfolio. समझ आ गया? Yes, sir. This is also called as basket of securities. This can also be called as basket of securities because combination or basket are one and the same thing. So you are actually grouping all the securities in which you have invested, all the different stocks in which you have invested, and the total combination of those securities is called as portfolio. Then right now we are just covering the theoretical part. When you actually planning your portfolio as per the risk and return profile and managing it efficiently so as to secure highest return for lowest risk at a particular level of investment is called portfolio management. I have read this definition from a book. So basically what is portfolio management? Definition तो पढ़ ली but मतलब क्या होता है? We know what is portfolio and we know what is management. नाउ बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है इसकी बात आते ही सबको ये याद आ जाता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग स्टाफिंग एंड ऑल बट उससे एक जनरल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अगर निकालें तो व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग योर पोर्टफोलियो on the basis of the risk and return profile and you are actually efficiently or managing you are efficiently managing your portfolio or you are efficiently actually investing or diversifying your risk in those different investments, then this is called as portfolio management. Again I am saying when you are planning your portfolio as per the risk and return profile, first word is risk and return profile, and managing it efficiently and managing it efficiently. When you are planning your portfolio, when you are planning your own portfolio or someone else's portfolio as per the risk and return profile of the investor and managing it efficiently to secure higher return, to secure high returns at low risk, at lower risk than
it is called as the portfolio management. When you are planning your investment, or the investment into the securities with proper investigation, with proper analysis of your risk and return profile, and managing that portfolio. First thing is that you are planning. Planning means you have created the portfolio, and after that you are managing it in the sense, as per the market fluctuations, whatever things are happening into the market, you are quite comfortably managing it efficiently and getting good return at a comparatively lower risk, or at the best possible lower risk. Then this is called as a good portfolio management, or simply a portfolio management. So portfolio management is nothing but managing all your entire portfolio with the 100% efficiency, wherein you can get a higher return at a lower risk. Then it is called as portfolio management. सेम बात को अलग अलग तरह से मैंने समझाया. आई थिंक अब अभी क्लियर है व्हाट इज पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Yes, sir. Yes, sir. ओके, now if we talk about, we'll read the entire process of portfolio management, but if we talk about the activities, so basically from the definition, if we see the major activities in portfolio management, first thing is that construction of portfolio. Second, monitoring or reviewing the portfolio. And third, evaluation of portfolio. Basically, if you are doing these three activities quite efficiently, then it can be said as a effective portfolio management, a good portfolio management. First of all, construct the portfolio. While constructing the portfolio, we'll be seeing a lot of things. बहुत सारे factors हमको mind में रखने पड़ते हैं, बहुत सारे factors पे काम करना पड़ता है. Once you are done with the construction of the portfolio, second thing is that monitor or review it periodically. After a particular time, in each time interval, you should review and monitor that portfolio. Otherwise, if you have created it once and you are not reviewing it, आप उसको monitor नहीं कर रहे हो सकता है महीने भर में मार्केट में ऐसे फ्लक्चुएशंस आए कि आपका वो पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी पे आपने बनाया था, वो काम नहीं करा और आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न में चला गया. सो यू नीड टू मॉनिटर द एंड रिव्यू ऑन अ पीरियोडिक बेसिस. हो सकता है किसी स्टॉक को आपको 15 दिन बाद निकालना पड़े उससे कि इसको बेच दो, इसमें अभी प्रॉमिसिंग रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टॉक, या जो ऑलरेडी सब बने हुए हैं उनके साथ एक और स्टॉक आपको प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो यू कैन ऐड दैट इनटू दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. सो दिस इज व्हाट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग. And third one is evaluate the portfolio. Whenever you create a portfolio, you must have particular target. So in terms of target set for risk and return and making adjustment accordingly. You keep on evaluating, keep on checking that what is the return I am getting and is it according to my set target of risk and return. Now what do we mean by set target of risk and return? Means risk, I have evaluated कि मैं इससे ज्यादा risk नहीं लूंगा, and my expected return, whatever return I am expecting, so is it going according to that or not. So this is what evaluation of portfolio. So basically we do these three activities in portfolio management. Is it clear? सर एक बार फर्स्ट वाली दोबारा बता दो. कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो बनाना. कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? यू हैव टू क्रिएट द पोर्टफोलियो. सो यू सेलेक्ट द स्टॉक. आपने स्टॉक्स देखे कि मुझे
अपना पोर्टफोलियो में लेट सपोज आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो और आपके पास में लेट सपोज 2 लाख रुपीस है। मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो समझा रहा हूं आपने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि मैं किस किस सेक्टर में पैसा लगाऊंगा। तो पहला सेक्टर आपने लिया दैट आई विल इन्वेस्ट इन बैंकिंग। सेकंड सेक्टर यू हैव टेकन दैट आई विल इन्वेस्ट इन फार्मा। थर्ड सेक्टर you thought that I'll go for automobile. Now which stocks or company? So in banking you thought suppose IndusInd Bank. You have taken one from SBI and you have taken one more, let's suppose HDFC. You have taken these. From pharma you have taken Cipla, you have taken Sun Pharma. Let's suppose you have taken only two. From automobile, let's suppose Bajaj, Tata Motors. You have taken. Now out of this 2 lakh, you have to divide the money in all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stocks. Let's suppose in IndusInd Bank, you have invested that I'll invest 20,000. In SBI, I'll invest 15,000. In HDFC, I'll invest 30,000. Total करते जाना. In Cipla, I'll invest 15,000. In Sun Pharma, I'll invest 35,000. कितना हो गया? 50, 80, 100, 1,15,000. In Bajaj, I'll invest let's suppose 50,000. And in this, I'll invest 35,000. I guess total 2 lakh rupees हो गया. Check कर लो एक बार. Yes, sir. है ना? So this is nothing but the construction of the portfolio. Now ये जो मैंने स्टॉक्स लिए, ये जो मैंने सेक्टर्स लिए, इन्हीं सेक्टर्स को मैंने क्यों लिया? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. आउट ऑफ दीज सेक्टर्स मैंने इन्हीं स्टॉक्स को क्यों लिया? सेकंड क्वेश्चन इज दिस. सो ये सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं. मैंने इन सेक्टर्स को सपोज मैंने कैलकुलेशन करी और मैंने चेक किया कोरिलेशन, और जिन जिन सेक्टर्स में मुझे नेगेटिव कोरिलेशन दिखा मैंने उन सेक्टर्स को इसमें ले लिया. अब आप कहोगे नेगेटिव कोरिलेशन से क्या मतलब है? यू नो व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? पता है किसी को दोनों में से? सर नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो सर रिस्क कम होगी. कैसे? अगर सर कोरिलेशन, सर पहली बात सर बीटा की वैल्यू से कैलकुलेट भी कर सकते हैं सर अपन रिस्क को. नहीं, सी बीटा इज डिफरेंट, उसको हटा दो. हम सिर्फ अभी कोरिलेशन की बात कर रहे हैं कि मैंने सेक्टर्स का कोरिलेशन चेक किया, सेक्टर्स के रिटर्न का कोरिलेशन चेक किया और नेगेटिव कोरिलेशन वाले सेक्टर ले लिए. क्यों नेगेटिव कोरिलेशन में? ऐसी क्या बात है कि आपने नेगेटिव कोरिलेशन वाले सेक्टर्स लिए? ये तो नहीं ध्यान सर. ठीक है. एक्स एंड वाई में अगर नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब यह है अगर एक्स इंक्रीज होगा, या सपोज हम पॉजिटिव बात करते हैं, वाई डिक्रीज होगा तो एक्स इंक्रीज होगा. या कभी कुछ मार्केट में ऐसा हुआ कि एक्स वाई जो है एक्स डिक्रीज हुआ तो वाई इंक्रीज होगा. सो द सिंपल थिंग इज दैट नेगेटिव कोरिलेशन टेल्स मी दिस रिलेशनशिप. ये अब इसका फायदा क्या है कि सपोज सर मेरे पास में जो भी सेक्टर्स हैं उनका रिटर्न का मैं ग्राफ बनाऊंगा अगर, तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा मामला. एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर उस टाइम पे नीचे गया है तो दूसरा मेरा ऊपर होगा, एक अगर नीचे चला गया तो दूसरा मुझे ऊपर होगा. सो ओवरऑल माय रिटर्न विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो एक स्ट्रेटेजी है सिंपल. नेगेटिव कोरिलेशन की स्ट्रेटेजी मैंने ले ली कि जिनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है मैंने उनको ले लिया, क्योंकि पॉजिटिव कोरिलेशन में ये होगा कि अगर एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा भी बढ़ रहा होगा, वेरी गुड. लेकिन अगर एक गिर रहा होगा तो दूसरा भी गिर जाएगा, यानी मेरा सारा पैसा नेगेटिव में जा सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर.
दैट इज वाई। सो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, उन बेसिस पे मैंने सेक्टर को चूज किया। फिर उन सेक्टर्स के अंदर जो बहुत अच्छे स्टॉक्स काम कर रहे थे, जो मेरे बजट में आ रहे थे, मैंने उन स्टॉक्स को लिया और उनके बीच में पैसा लगा दिया। मैं इन स्टॉक्स में भी कोरिलेशन चेक कर सकता हूँ, इन स्टॉक्स के अंदर भी मैं कोरिलेशन चेक कर सकता हूँ और उसके हिसाब से भी मैं इनका सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो हर्षित, ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, समझ आया? यस सर। ओके। देन आता है नेक्स्ट, इसमें इसी चीज को, इन्हीं 3 एक्टिविटीज को अगर एक प्रोसेस की फॉर्म में पढ़े तो वो कहलाता है प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज व्हाट? First of all, again step-wise process. First step of any of the process is define objectives or define or and prioritize the objective. डिफाइन तो पता है, प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है अनिल? सर प्रायोरिटी देना कि मतलब मैं पहले इस चीज को प्रायोरिटी दूंगा, फिर उसके बाद में उस चीज को, उस स्टॉक को प्रायोरिटी दूंगा। Exactly. The thing is that first of all you need to have your objectives. You need to define your objective. Whenever you are investing someone, you should have some objective. कि मुझे इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए, मुझे इतने टाइम में इतना पैसा चाहिए। तो टेन्योर कैन बी short term, tenure can be long term, tenure can be of a medium kind of a term. So define the objective and then prioritize those objectives. सबसे पहले मुझे ये करना है, सेकंड थिंग मेरी ये होनी चाहिए, थर्ड थिंग मेरी होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे इसके लिए इतना इतना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिएगा। So prioritize your objective, define your objectives and prioritize your objective. Then second thing is identify the constants. What is constant, Harshit? रेगुलर सर, एक समान। नहीं, कांस्टेंट इज वो होता है कांस्टेंट, यहां है कांस्टेंट लिमिटेशन। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस। अब आप बोलोगे सर लिमिटेशन से मतलब नन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन वर्क दैट देयर इज नो कांस्टेंट। दैट मींस यू हैव, I mean, infinite amount of money. So identify your constant. The constant can be in terms of the funds available to you. The constant can be in terms of the time period you have to invest. That the constant can be the liquidity or marketability of the investment, right? कितने टाइम के लिए करना है, क्या टैक्स रेट्स हैं और जो एप्रिसिएशन मिलेगा उस पर कितना टैक्स लगेगा, आपके पास फंड कितना अवेलेबल है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। all these constants should be identified because then only you will be able to find out कि ये investment मेरे लिए best होगा, ये stocks में investment मेरे लिए best होगा। So identify your constant। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Then third is select the appropriate mix. Portfolio is all about mixing the different securities. So select the appropriate mix. You have हमने कर लिया रिस्क एंड रिटर्न की डाइवर्सिटी कैलकुलेशन और उसकी जो रिटर्न के हिसाब से किस तरह से रिस्क आपकी बढ़ती जाती है। सो यू शुड हैव अ पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज। अगेन मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द सेंस कि आप वही अभी जो हमने नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल लिया उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, या कुछ अलग जो इंटरडिपेंडेंस है डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टू एवेन्यूज में, डिफरेंट सिक्योरिटीज में, उन सबका एक अप्रोप्रिएट मिक्स बनाइए। वो मिक्स किस बेसिस पे बनेगा? आपके रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से बनेगा कि कितना रिस्क आप ले सकते हो, ये पैसा कितना टाइम बाद में आपको रिक्वायरमेंट होगी। इन सब वही कांस्टेंट के आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव के डेफिनेशन और प्रायोरिटाइज करने के बाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे यू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मिक्स of securities. The most important decision in portfolio management is this only, that make selecting the appropriate mix. This can be combination of stocks,
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कंपनीज, या कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, right? So all these things can be considered, and out of this analysis आपके पास में एक particular appropriate mix होगा कि मैं इन sectors में, इन securities में, इन investment avenues में मैं invest करूंगा. Then you have, ये थोड़ा technical है और समझने लायक चीज है, determine the portfolio strategy. There are different strategies for portfolio. Now, after you have selected an appropriate asset mix, now you need a portfolio strategy. Now, what is portfolio strategy? One strategy can be said as active portfolio strategy. The second is passive portfolio strategy. अब दोनों का मीनिंग समझते हैं. Active portfolio strategy aims at earning superior risk adjusted return through market timing, security selection, sector rotation and some suitable combination of these. मतलब you are totally active in your portfolio and as per the market fluctuation you keep on changing the securities. वही मैंने बताया, किसी सिक्योरिटीज को निकाल देना, किसी सिक्योरिटी को और आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना. So you keep on changing the securities and you try to gain from time to time changes in the market. एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का मतलब यही है कि बीइंग ए पोर्टफोलियो मैनेजर, बीइंग एन इन्वेस्टर, यू आर टोटली एक्टिव इन द मार्केट. आप मार्केट पे क्लोज वॉच बनाए हुए हो और उसमें होने वाले चेंजेस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में डेली बेसिस पे चेंजेस करते रहते हो. जस्ट अ सेकेंड बेटा, 1 मिनट में आया मैं. मैं तो लिखा के गया ज्यादा लगी क्या? एकदम पूरे प्रेशर से पड़ता है. किनारे की तो नहीं लगी ना? एकदम मुझे पता ही नहीं क्या लगा था. यस बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you keep on changing the securities on the basis of changes happening in the market. इसको बोलते हैं बेटा active portfolio strategy. Now इसका opposite हो गया passive portfolio strategy. That you actually hold a broadly diversified portfolio in order to maintain a predetermined level of risk exposure. मतलब आप इतना frequently उसमें changes नहीं कर रहे हो, आप उसको एक long tenure के लिए उस particular portfolio को चलने देते हो. This is what passive portfolio strategy. एक्टिव पैसिव दो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं और पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं. आप पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप पहले ही ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लेते हो और उसके हिसाब से पहले से आपने सोच रखा है कि इसमें ये रिस्क होगी, उसके हिसाब से उस पोर्टफोलियो को आगे गेन करने देते हो. एंड एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में
based on the market changes, depending on the different fluctuation in the market, you keep on changing your portfolio on a regular basis. This is what active portfolio strategy. Clear है? Yes, sir. Okay. Then next step is execute the portfolio. You have done with the defining the objectives, you have done with the identifying the constant, you have selected the appropriate mix. आपने appropriate mix बना लिया है, आपने अपनी portfolio strategy select कर ली है, decide कर ली है. Now it is time to put all your planning onto the action कि अब जो स्टॉक्स आपने सोचा था उनको बाय करो, जो स्टॉक्स में आप जो इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे उनमें इन्वेस्ट करो. नाउ एक्चुअली पुट योर पोर्टफोलियो ऑन टू द एक्शन. दिस इज व्हाट एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन का मतलब तो पता ही होगा, एग्जीक्यूट करना, प्रैक्टिकली किसी काम को स्टार्ट करना, राइट? यस सर. देन रीबैलेंसिंग और रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो. सॉरी, execute the portfolio, then rebalance and revise the portfolio on a regular basis. एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आपने ले लिया कि इसके बाद में मैं अपने पोर्टफोलियो को चेक करूंगा, रीबैलेंस करूंगा. अगर कोई स्टॉक मुझे नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है तो मैं उसको पर्टिकुलर जो है स्टॉक को बेच दूंगा और उसकी जगह जो मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये ऊपर जा सकता है, मैं उस स्टॉक को अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में ले लूंगा. या सपोज स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो में आपने ये किया था कि 30% मेरा इक्विटीज में रहेगा एंड 70% मेरा डेट सिक्योरिटीज में रहेगा. देन अब आपको लग रहा है कि इक्विटी मार्केट थोड़ा स्टेबल हो रहा है तो आप उसको रीबैलेंस भी कर सकते हो कि नाउ माय 40% इन्वेस्टमेंट इनटू द इक्विटी एंड 60% विल बी इन दैट. या अगर आपको लग रहा है इक्विटी अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन है, तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि 20% इन द इक्विटीज एंड 80% इनटू द दैट, बिकॉज आप सिक्योरिटी वाइज थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो कि इक्विटी शेयर्स नीचे जा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट रीबैलेंसिंग एंड रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो. ठीक है. एंड लास्ट स्टेप आता है इवैल्यूएट एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस. इवैल्यूएट एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस. You evaluate, keep on evaluating the performance of your portfolio and keep on monitoring it that जो भी आपका set objective target था कि इतना मनी मुझे इतने टाइम में चाहिए, is it going according to that or not, और नहीं है तो जिससे पहले वाला स्टेप है रीबैलेंसिंग या रिवीजन, रीबैलेंस इट, रिवाइज इट. और कहीं रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, रिस्क के हिसाब से भी चेक करना, मतलब ऑल दोस पैरामीटर्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना, उसको मॉनिटर करना कि परफॉर्मेंस उसकी कैसी जा रही है, एज पर माय सेट टारगेट है या नहीं. समझ आया? Yes, sir. कोई भी दिक्कत इसमें तो बोलो. ठीक है. अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, बाकी चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. पोर्टफोलियो पढ़ने के बाद में आपको एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए और उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, कोई बता सकता है? सर जैसे कोई रिस्क है उसको डिवाइड करना अलग अलग चीजों के अंदर, वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया सर. Exactly. You try to minimize the risk. You don't try to eliminate the risk. Diversification से risk eliminate नहीं होती है, पूरी तरह से जीरो पे नहीं जाएगा, लेकिन you try to minimize the risk by using diversification. Diversification का मतलब हम कहते हैं डाइवर्जन आता है, होता है ना, रोड पे डाइवर्जन है. What is that? कि आधे लोग इधर से चले जाओ, आधे लोग इधर से चले जाओ. तो उस वर्ड से ही निकला है डाइवर्सिफिकेशन. You actually allocate the funds among the several eligible securities. This is called as diversification of the portfolio या diversification of in the securities.
अभी हमने जो मैंने हर्षित को ये एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ये डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। आपने क्या किया, आपका पूरा जो टोटल 2 लाख रुपीस था, अगर वो आप केवल एक जो है एसबीआई में इन्वेस्ट कर देते तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं था। आपने यू हैव अलोकेटेड द फंड अमंग दीज 7-8 डिफरेंट सिक्योरिटीज, दिस इज नथिंग बट डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। समझ आ रही है बात मेरी? यस सर। यस सर। दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन। अब इस डाइवर्सिफिकेशन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं? यू कैन डू दिस डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि केवल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन डिफरेंट असेट्स। डिफरेंट असेट से हमारा मतलब क्या हो गया कि आप गोल्ड में कर दो, करेंसी में कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो। ये हो गया एसेट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी। देन यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेंस कि सर मैं तो थोड़ा पैसा तो शेयर्स में लगाऊंगा, थोड़ा डिबेंचर्स में लगाऊंगा, थोड़ा बॉन्ड्स में लगाऊंगा। ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा क्या हो सकता है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो अभी हमने किया था उस एग्जाम्पल में जब हर्षित ने पूछा था कंस्ट्रक्शन। कैसे कि आपने बैंकिंग में लगा दिया थोड़ा पैसा, डिफरेंट इंडस्ट्री, आपने फार्मा में लगा दिया थोड़ा पैसा, आपने एफएमसीजी में लगा दिया तो थोड़ा पैसा। दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन बाय यूजिंग द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट कंपनीज। ये भी अभी हमने उस एग्जांपल में किया, दैट यू कैन डाइवर्सिफाई और यूज इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनीज। जैसे आपने ले लिया कि मैंने एसबीआई में लगा दिया, मैंने सिप्ला में लगा दिया, मैंने सन फार्मा में लगा दिया, ठीक है, मैंने आईटीसी में लगा दिया, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन बाय यूजिंग डिफरेंट कंपनीज। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन डाइवर्सिफाई बाय यूजिंग either different assets, different instruments, different industries, different companies. So this is how you can diversify your investment in order to minimize the risk. The prime principle of diversification is the minimization of the risk or diversification of the risk. एक पोल के ऊपर अगर पूरी बिल्डिंग रोकोगे तो उसके गिरने का खतरा है, लेकिन 4 पोल बना के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे तो उसका वजन जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया चारों पे, तो आपके बिल्डिंग के गिरने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि 4 पोल पे बनी हुई बिल्डिंग कभी गिर नहीं सकती, बट द रिस्क इज मिनिमाइज्ड। समझ में आया? यस सर। सारे एग्स अगर एक बास्केट में डाल दोगे तो बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे फूट जाएंगे, लेकिन अगर जो है 4 अलग अलग बास्केट में 2-2 अंडे डाल रखे हैं तो एक बास्केट गिरेगी तो बचे हुए 3 बास्केट के अंडे सेफ हैं। This is what the prime principle, general principle of diversification. Is it clear? यस सर। यस ठीक सर। है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इस डाइवर्सिफिकेशन को पढ़ेंगे एंड देन इसका जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है उसके ऊपर आ जाएंगे कि पोर्टफोलियो कैसे उसका रिस्क एनालिसिस होता है, कैसे उसका रिटर्न एनालिसिस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करता है एंड ऑल दैट। आज मैं इसकी पीडीएफ बना लूंगा, इससे पहले वाली भी, तो वो आपको मैं भेज दूंगा। अभी मैंने बनाई नहीं थी इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया। ओके सर। ओके ठीक है, टेस्ट में शेड्यूल कर दूंगा तो उसको दे देना। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम।